what I've discovered as I've observed people, और मैंने लोगों में ऐसा देखा है, there are some people anointed with the Spirit. और कुछ लोग हैं जो कि अभिषेक को प्राप्त किए हुए हैं, Through they've sought for the anointing, they got it. और उन्होंने अभिषेक का जो है इंतजार किया, बाट जो है, और उनको मिला. But many of them don't seem to live a godly life. और उनमें से कई लोग जो है एक भक्त के जीवन नहीं निर्वाह करते. They wanted the gifts of the Spirit and they got it. और उनको जो है पवित्र आत्मा का जो तोहफे हैं वो चाहिए. But they did not seek to be continuously filled with the Spirit. लेकिन वो लगातार आत्मिक जीवन में नहीं है. And I believe they're finally lost. और मैंने देखा कि वो आखिर में खो जाते हैं. Because they stand before the Lord and said, Lord, we did miracles in your name. फिर वो बोलते हैं कि प्रभु के सामने खड़े होकर, प्रभु मैंने तो बहुत अचंभे के काम किए. How can you do a miracle in the name of Jesus without being anointed with the Spirit? Impossible. और अभिषेक के बगैर किस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के नाम इस्तेमाल करके आप जो है अचंभे के काम कर सकते हो? How are such people lost? और फिर ऐसे लोग खो कैसे How जाते does हैं? Jesus say to people anointed with the Spirit, get away from me? और अभिषेक लोगों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि मुझसे दूर हो जा? Because they were living in sin. क्योंकि वो पाप में जीवन जी रहे थे. Can people anointed with the Spirit live in sin? क्या आत्मा से अभिषेक पाए हुए लोग पाप में जीवन जी I सकते हैं? have seen numerous pastors who are definitely supernaturally anointed to preach the word who are living in sin. और मैंने ऐसे बहुत सारे पासवानों को देखा है जो कि अलौकिक शक्ति से भरे हुए हैं और वो पाप में जीवन जीते हैं. See so many people you watch on television. और टीवी में देखिएगा. You think they're all living holy lives? क्या आपको लगता है कि वो सब पवित्र जिंदगी जीते हैं? Their love for money proves they are not holy. और उनका धन के प्रति जो प्रेम है वो साबित करता है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं Their करते. eagerness to get money from poor people for themselves shows they are not serving God, they are serving money. और जो उनके अंदर पैसा पाने का जो इच्छा है वो साबित करता है कि वो परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, वो धन की सेवा करते हैं. But there are supernatural abilities they have, sure. लेकिन अलौकिक शक्तियां उनके अंदर है. They are the ones to whom the Lord will say, depart from me, you lovers of money, you who live in sin. और ये वो लोग हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तुम जो है पाप को प्यार करते थे और पैसे के पीछे थे, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ. If you don't understand that today, अगर जो आप ये बात को नहीं समझोगे, you will sit there watching that television और आप टेलीविजन के सामने उनको देखकर बैठ and जाओगे, say, wow, what a man of God. फिर आप बोलोगे अरे देखो कितना महान परमेश्वर का दास है. Why? क्यों? Because you were reading the scriptures, you didn't go to Jesus. क्योंकि आपने वचन तो पढ़ा लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए. I teach people in my church, मैं अपनी कलीसिया में लोगों को सिखाता हूँ. you must compare every preacher with Jesus Christ. और हमें हर प्रचारक की तुलना करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ. Don't just be taken up that he's casting out demons and doing miracles. कभी भी ऐसा नहीं देखे कि क्या कहते हैं अरे वो तो दुष्ट आत्माओं को वो निकाल रहा है. Because some of those people, Jesus said he will send away to hell in the final day. और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आखिर के दिनों में, अंत के दिन में मैं उनको आग में डाल दूंगा. Now you know here in Bombay television, Christian television, so many people are doing all types of things on Christian television. हाँ, हम देखते हैं कि क्रिश्चियन टेलीविजन के अंदर बहुत सारे काम देख सकते हैं. How many of you really believe that some of them are going to hell? आप में से कितना विश्वास करते हैं कि उनमें से कई लोग जो है नरक में जाएंगे? You don't believe it, right? आप विश्वास नहीं करते You हैं. think I'm सही? preaching some strange teaching. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और ही प्रचार कर रहा हूँ. Heaven and earth will pass away. Jesus' words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा. There are people who will come to Jesus in that day और उस दिन जो है कई सारे लोग and प्रभु यीशु say, मसीह के पास आएंगे. Lord, we did miracles in your name. फिर वो बोलेंगे हमने तेरे नाम पे जो अचंभे के काम किए, I cast out demons in your name. हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला तेरे नाम We से prophesied in your name. और भविष्यवाणियां किया तेरे नाम से. And Jesus will say, depart from me. और प्रभु यीशु मसीह का कहेगा कि मुझसे दूर हो जाओ. That's the first time Jesus spoke about that day. और वो पहली दफा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में So बात how किया. shall we prepare ourselves for the coming of the Lord? तो हम किस प्रकार से तैयार हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए? Let me show you Matthew chapter 24. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय. In Matthew 24, वहां पे मत्ती 24. the disciples asked Jesus, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा what will be the sign of your coming? Matthew 24 and verse 3. 3 में लिखा हुआ है कि तेरे आगमन का अंत का चिन्ह क्या होगा? What will be the sign of your coming? और तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा? Many of you have read that many times. आप लोगों में से कईयों ने बहुत बार पढ़ा होगा. Without looking there, can you tell me what is the first answer? बगैर देखे क्या आप जवाब दे सकते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है? Many people think of famines, earthquakes, wars. वहां पे
कई लोग जवाब देंगे कि अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, ये सब, wars and rumors of wars. और युद्ध होंगे और युद्ध के जो है अफवाहें फैलेंगे। That all he said later in verse 7. हाँ, ये सब जो है साथ में वगैरह लिखा हुआ है। What is the first thing he said? लेकिन पहली बात उसने क्या कहा? See that nobody deceives you, verse 4. और उनसे कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, Deception. यानी कि भरमाना है। Again, 11. Many क्या? false prophets will arise. और 11 में लिखा हुआ है कि जितने झूठे भविष्यवक्ता हैं Verse उनसे भरमाए ना जाए। 24. और 24, Many false prophets will arise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. हाँ, बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, On television. यानी कि टेलीविजन में, Deception. यानी कि धोखेबाजी। And he said, verse 25, I have told you in advance, I warned you. और 25 में कहता है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। That is the number one sign of the last days. और अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह यही है। That's the first thing he said, and he repeated it more than once. और एक से अधिक बार उसने दोहराया है, And we see plenty of it today. और हम बहुत जगह देखते हैं। But there's another gospel which is being preached also today. और दूसरा एक सुसमाचार है जो कि प्रचार में Verse 14, वचन जो है 14, it's talking about the last days. वो आखिर के अंत के दिनों के बारे The में। gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and then as a witness, and then the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियां पर गवाही हो। Not the gospel of signs and wonders. यहाँ पे चिन्ह और चमत्कार का सुसमाचार नहीं। Many of you I know are being deceived by that. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इन कामों के द्वारा भरमाए गए हो। Read verse 24 and see the possibility of deception. Even the elect may be deceived. यहाँ पे 24वां वचन पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। What is the gospel that is the real gospel that is being preached? और यहाँ पे असली सुसमाचार के बारे में लिखा The हुआ है। gospel of the kingdom of God. सुसमाचार यानी कि परमेश्वर के राज्य का। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या And है what is the gospel of the kingdom of और God? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? Don't take my words for it. मेरे वचन को ना ले। Read what the Holy Spirit says in Romans 14. और रोमियो 14 में जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है वो Romans पढ़िए। 14 in your Bible और रोमियो 14 जो कि आपके वचन में कलाम में and verse 17. 14 उसका 17वां पढ़िएगा। Romans 14:17. रोमियो 14 उसका 17 It tells us what the kingdom of God is. यहाँ पे बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य The क्या है। kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म विलाप और आनंद है। This is the gospel of the kingdom. Jesus said it will be preached in all the world before the end comes. और यही परमेश्वर के सुसमाचार राज्य का सुसमाचार है जो कि अंत के दिन होने से पहले पूरे जो है धरती भर में प्रचार किया So जाएगा। let's put both these together. हम इन दोनों को जोड़ देते What हैं we read in Matthew 24. जो कि मत्ती रचित In the सुसमाचार last days 24 में there will पढ़ा be a है। lot of deception with false signs and wonders. इसका मतलब ये है कि अंत के दिनों में बहुत सारी जो है झूठी चीजें होंगी False wonders. और गलत जो है अद्भुत कामें होंगी, A lot of झूठे it. अद्भुत। And then at the same time और उसी समय there's a gospel of righteousness that's going to be preached all over the world. और धार्मिकता का सुसमाचार भी उसी समय प्रचार होगा। That means a gospel of freedom from sin. इसका अर्थ यह है कि पाप से मुक्ति का प्रचार A gospel of a holy life. और जो है एकदम शुद्ध यानी कि पवित्रता का And a प्रचार gospel of peace. और शांति का प्रचार। That's the second thing. Righteousness, peace, and joy. और वही है धर्म और मिलाप। A gospel of peace is शांति का प्रचार perfect peace with God without any condemnation. और बगैर किसी अपराध बोध के परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता Absolute conviction that my sins are all forgiven and blotted out. और पूरा एहसास होना कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं No करके doubt about it. और उसमें कोई शक ना रखना। Because we are sure the blood of Jesus has cleansed me thoroughly. There's no memory of my past sin. हाँ, अगर जो प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पापों को धो दिया तो कोई भी पाप अब मेरे अंदर जो है याद में नहीं। And then peace in the heart, freedom from anxiety and worry and fear. और हर एक चिंताओं से मुक्ति और जो है एकदम शांति अपने जीवन में अपने दिल में अनुभव करना। That is the gospel of peace. और वही है मिलाप का And सुसमाचार peace with God, और परमेश्वर के साथ मिलाप peace inwardly, और हमारे भीतर के साथ मिलाप freedom from anxiety, और सारी चिंताओं से and मुक्ति
peace with other people. और लोगों के साथ शांति, That we मिलाप। completely stop fighting with others. और इसका मतलब ये कि दूसरों से लड़ना झगड़ना बंद करो। This is the gospel of a threefold peace. और यही 3 प्रकार की शांति के बारे में समाचार है। With God, पहला परमेश्वर के साथ, inwardly, फिर हमारे and अंदरूनी with मनुष्य के all साथ, peace with all men. और हमारे सारे चारों तरफ जितने लोग हैं उनके साथ। Not fellowship with all men, because many people don't want to have fellowship with us. हाँ, कई लोग हमारे साथ जो है संगति रखना नहीं So we're चाहते। not talking about fellowship. मैं संगति के बारे में बात नहीं कर रहा। शांति। I can have peace with my unconverted neighbor without having any fellowship with him. और बगैर संगति के ही जो ईश्वरीय भक्ति में नहीं है उनके साथ मैं मिलाप रख सकता हूँ। Peace means he comes to fight with me and I don't fight. हाँ, वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने को आए लेकिन मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा। See, if you refuse to fight, there can be no fight. अगर जो आप लड़ाई करने से मना करते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। You know that husbands and wives, if one person refuses to fight, there's no fight. हाँ, पति पत्नी में लड़ाई होता है, अगर जो एक जना मना कर दे तो लड़ाई नहीं होता है। You need two hands to make a noise. तो आवाज करने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। If husband and one of them refuses to fight, there's no noise. हाँ, अगर जो पति या पत्नी में से कोई मना कर दे लड़ाई करने के लिए तो आवाज नहीं बनेगा। Why is there a fight in your home? तो लड़ाई क्यों होता है घर पे? Because both want to fight. क्योंकि दोनों लड़ना चाहते हैं। If either one will say, I will not fight, there's no more fight. अगर जो आप में से एक भी बोल देता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता तो वहां पे लड़ाई नहीं होगा। Can anybody fight all by himself without anybody else? क्या बगैर किसी सामने वाले के अपने आप से कोई लड़ सकता है क्या? Impossible. नहीं हो सकता। So remember this simple principle. इसलिए साधारण सा सिद्धांत याद रखें। If your partner wants to fight, you refuse to fight. There'll be peace in your home. हाँ, अगर जो आपका जो साथी है वो आपसे लड़ना चाहते हैं तो आप मना कर दें तो शांति रहेगा, लड़ाई नहीं होगा। And if both refuse to fight, अगर जो दोनों लड़ाई करने से मना कर देते हैं then you have something even better than peace. तो वो शांति से भी बढ़कर होगा। You have fellowship. तो संगति होगा वहां पे। If you don't have fellowship, peace is at least the second best. तो अगर जो आपके घर में संगति नहीं है तो कम से कम शांति को कायम रखें। So that's the gospel of peace that we preach. और वही मिलाप का सुसमाचार है। And the third is joy in the Holy Spirit. और तीसरा है पवित्र आत्मा में आनंद। That means no complaining, इसका मतलब है कि कोई शिकायत no नहीं, murmuring, कोई कुड़कुड़ाना no नहीं, grumbling. कोई कुड़कुड़ाना नहीं। What a gospel this is. देखो किस प्रकार का सुसमाचार है। Righteousness, धार्मिकता, peace, मिलाप and joy. और आनंद, All through the power of the Holy Spirit, not by our own ability. वो हमारी ताकत से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। That is the kingdom of God. और यही परमेश्वर का राज्य है। How many churches do you hear preaching all this? आप कितने कलीसियाओं में ये सुनते हैं इस विषयों के You tell ऊपर? me, how much do you hear about all this on the internet? आप इंटरनेट में इन सब विषयों के बारे में कितना सुनते हैं? Very, very few people. बहुत कम लोग प्रचार करते हैं। But because of the internet, it is being preached all over the world today. क्योंकि इंटरनेट होने के कारण पूरे संसार भर में प्रचार हो रहा है। Jesus said, this gospel of the kingdom will be preached around the world as a witness. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गवाह के तौर पर पूरे संसार भर में ये राज्य का सुसमाचार प्रचार होगा। So that is how we are going to be ready for the coming of the Lord. और इस प्रकार से हम तैयार हो सकते हैं प्रभु यीशु By मसीह के आगमन के लिए। responding to this gospel. और इस समाचार के प्रतिक्रिया दिखाते हुए Through the scriptures we come to Jesus. वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए।